Hello everyone, this is Lokesh Maheshwari. Today we are going to see one situational conversation. If you really love learning English and want to become a fluent English speaker, you are in the right place. Today we will practice a real life restaurant conversation. Be it ordering your foods, be it asking for recommendations or handling the tricky situations. This video will help you to speak confidently. So let's get started. And one more thing, see, this is a practice video, so I would like you to repeat the sentence after me, right? Okay. So now you are entering the restaurant along with your friends. You are entering the restaurant along with your friends. आप अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में जा रहे हैं. So how the waiter welcomes you? Good evening, sir. Welcome to Spice Hub. The name of the restaurant is Spice Hub. He is welcoming you. And how many people in your group? Now he is asking how many people in your group, यानी कि आपके ग्रुप में कितने लोग हैं. So he is asking for the number of members, number of people along with you. तो you said, आपने बोला good evening, we are 4 people. We are 4 people. You know, keep repeating the sentence after me. Fine? Okay. Waiter, would you like to sit in an AC section or an open area? Would you like to sit in an AC section or open air area? Now think this, there are 2 type of sections in a restaurant. One is AC section, which is a closed one, and another is an open area section where you can sit. So now the waiter is asking you, waiter आपसे पूछ रहा है कि सर आप would you like to sit in an AC section? क्या आप AC section में बैठना चाहोगे या खुले एरिया में आप बैठना चाहोगे? तो would you like to sit? Remember the sentence. Would you like to sit? ठीक है ना? कहाँ बैठना चाहोगे? You said AC section please. We would like to sit in AC section या AC section please. हम AC section में बैठना चाहेंगे. All right, this way please. Now he is leading you to the table. Now he is leading you to a table. So this way please. आइए सर इस तरफ आइए. This way please. Okay. Next is thank you. Waiter, here is the menu. Now he is giving you the menu. वो आपको अपना menu दे रहे हैं और he is saying here is the menu. Here is the menu. मतलब ये menu है. Now, would you like to start with something to drink? क्या आप कुछ पीने से शुरू करना चाहेंगे? Would you like to start? Come on, repeat the sentence after me. Would you like to start with something to drink? मतलब क्या आप कुछ पीने के साथ शुरू करना चाहेंगे? Right? Yes. One on fresh lime soda and one mango lassi. One fresh lime soda and one mango lassi. Right? Okay. What are the other ways? Alternative ways to order drinks. और क्या तरीके होते हैं ड्रिंक को ऑर्डर करने के? Suppose if you want to have a coffee, then how can you say, can I get a cup of coffee please? Can I get a cup of coffee please? Come on, repeat. Can I get a cup of coffee please? This is another way कि क्या मुझे कॉफी मिल सकती है? और you can say, I will have a glass of water. I will have a glass of water. I will have a glass of water. These are another alternative ways of ordering your drink. Then you have, would you like the soda sweet or salty? Now the waiter is asking you, वो पूछ रहा है आपसे कि सर would you like the soda sweet or salty? मतलब आपको जो सोडा है वो मीठा चाहिए या नमकीन चाहिए? तो अब आपसे पूछे कि one sweet and one salty. एक तो मीठा चाहिए और एक salty चाहिए. Then after looking at the menu, waiter, are you ready to order? Now once you have seen the menu, now he is asking you, the waiter is asking you, sir, are you ready to order? क्या आप तैयार हैं ऑर्डर करने के लिए? ठीक है? Now you said, yes, I will have the grilled chicken with mashed potato. I will have a grilled chicken. मैं grilled chicken लूंगा with mashed potato. यानी कि mashed potato के साथ मैं grilled chicken लूंगा. This is what you ordered. ये आपने ऑर्डर किया है. अब what are the alternative ways to order food? और क्या तरीके होते हैं? I would like the pasta with garlic bread. I would. Now this I apostrophe D, it means I would. I would like the pasta with garlic food. यानी कि मैं garlic bread के साथ पास्ता लेना चाहूँगा. I would like. Come on, repeat the sentence. I would like the pasta with garlic bread. यानी कि garlic bread के साथ मैं पास्ता लेना चाहूँगा. Can I get a cheeseburger with fries? Can I get a cheeseburger with fries? क्या मुझे cheeseburger मिल सकता है fries के साथ? Fries means French fries होता है basically. ग्रेट चॉइस, बहुत अच्छी चॉइस है सर आपकी, बहुत अच्छी पसंद है आपकी. वुड यू लाइक एनीथिंग एल्स? वुड यू लाइक एनीथिंग एल्स? क्या आप और कुछ लेना चाहेंगे? वुड यू लाइक एनीथिंग एल्स? नो, दैट्स ऑल फॉर नाउ. नहीं, अभी के लिए बस इतना ही. दैट्स ऑल फॉर नाउ. कम ऑन, रिपीट. दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक यू. All right, what would you like to order for the main course?
What would you like to order for the main course? आप main course के लिए क्या order करना चाहेंगे? What would you like to order for the main course? Repeat the sentence. Okay. So what do you recommend? Now you are asking for the recommendation. भाई हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम पूछते हैं ना कि अच्छा बताइए आपके यहाँ पे क्या है सबसे अच्छा, क्या सबसे बेस्ट होता है यहाँ पे, यहाँ का फेमस चीज क्या है. सो यू आर आस्किंग फॉर द रिकमेंडेशंस. आप उनसे रिकमेंडेशंस पूछ रहे हैं. सो व्हाट्स योर बेस्ट डिश, व्हाट्स योर बेस्ट डिश मतलब आपकी यहाँ की सबसे बेस्ट डिश कौन सी है या क्या है, राइट. और व्हाट्स द मोस्ट पॉपुलर आइटम ऑन द मेन्यू, व्हाट्स द मोस्ट पॉपुलर आइटम ऑन द मेन्यू. कम ऑन रिपीट द सेंटेंस. व्हाट्स द मोस्ट पॉपुलर आइटम ऑन द मेन्यू, यानी कि आपके मेन्यू में सबसे पॉपुलर आइटम क्या है. ओके. नाउ आवर स्पेशल टुडे इज पनीर बटर मसाला विद गार्लिक नान. आवर स्पेशल टुडे इज पनीर बटर मसाला विद गार्लिक नान. ये आज का हमारा स्पेशल है यहाँ पे. साउंड्स ग्रेट. ओ बहुत बढ़िया. साउंड्स ग्रेट मतलब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार. वी विल हैव दैट. हम आज वही खाएंगे. ऑल्सो 1 प्लेट ऑफ दाल तड़का एंड जीरा राइस. ऑल्सो मतलब इसके साथ हम 1 प्लेट तड़का और 1 प्लेट जीरा राइस भी लेंगे. वुड यू लाइक एनीथिंग एल्स सर, क्या आपको और कुछ लेना चाहेंगे? वुड यू लाइक एनीथिंग एल्स? नो, दैट विल बी ऑल. दैट विल बी ऑल. बस इतना ही. प्लीज मेक इट लेस स्पाइसी. नाउ यू आर आस्किंग योर वेटर टू मेक इट लेस स्पाइसी. अब आप वेटर से बोलो कि थोड़ा सा ना कम मिर्च वाला बनाना भैया, कम तीखा बनाना. तो प्लीज मेक इट लेस स्पाइसी. श्योर सर, पक्का. श्योर सर. योर ऑर्डर विल बी रेडी इन 20 मिनट्स. योर ऑर्डर विल बी रेडी इन 20 मिनट्स, यानी कि आपका ऑर्डर 20 मिनट्स में तैयार हो जाएगा. कम ऑन. योर ऑर्डर विल बी रेडी इन 20 मिनट्स. और भी तरीके होते हैं, अल्टरनेट वेज. आई एम एलर्जिक टू नट्स. आई एम एलर्जिक टू नट्स. अब कभी आपको किसी चीज खाने से या किसी चीज से प्रॉब्लम है तो आप उसको वेटर को बता देंगे भैया मुझे है ना नट्स से एलर्जी है. तो डू यू हैव एनी नट फ्री ऑप्शंस, क्या आपके पास कोई नट फ्री ऑप्शंस है या जिसमें नट नहीं होता वैसे कोई ऑप्शंस है, कोई चीज ऐसी चीजें हैं? तो उसने बोला यस वी कैन मेक योर मील विदाउट नट्स. वी कैन मेक योर मील विदाउट नट्स. कम ऑन रिपीट. वी कैन मेक योर मील विदाउट नट्स. हम आपका जो खाना है बिना नट्स के बना सकते हैं. आई इन्फॉर्म द शेफ. I'll inform the chef, यानी कि मैं शेफ को इन्फॉर्म कर दूंगा, उसको मैं बता दूंगा. राइट. ओके. नेक्स्ट वी हैव इज कैन वी मेक इट लेस. सो कैन यू मेक इट लेस स्पाइसी, क्या आप उसको थोड़ा सा कम तीखा बना सकते हैं? कैन यू मेक इट लेस स्पाइसी. अल्टरनेटिव वेज ऑफ मॉडिफिकेशन. अदर वेज टू रिक्वेस्ट मॉडिफिकेशन, जो आप खाने में मॉडिफिकेशन चाहते हो उसके क्या क्या तरीके होते हैं. आई एम वेजिटेरियन. डू यू हैव एनी वेजिटेरियन ऑप्शंस. मैं वेजिटेरियन हूं, क्या आपके पास कोई और वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं आपके पास? Can I have the salad without onions? Can I have the salad without onions? मतलब क्या मुझे सैलेड मिल सकता है बिना अनियंस के? These are the modifications which you want in your meal. आपके अपने मील में modifications चाहते हैं. Handling mistakes and complaint. Suppose आपका ऑर्डर जो था वो गलत आ गया है, आपने कुछ और बोला था और वो आपके लिए कुछ और सर्व कर दिया आपको. तो वहां पे अब आप उस सिचुएशन को, उस पर्टिकुलर चीज को कैसे हैंडल करेंगे? तो वहां पे आपने बोलेंगे एक्सक्यूज मी. आपने बुलाया उसको, एक्सक्यूज मी आई ऑर्डर्ड अ वेजिटेरियन पिज्जा बट दिस हैज चिकन इन इट. मैंने तो वेजिटेरियन पिज्जा मंगाया था भाई, इसके अंदर तो चिकन है, बट दिस हैज चिकन इन इट. यू कॉल द वेटर एंड यू सेड कि एक्सक्यूज मी आई ऑर्डर्ड अ वेजिटेरियन पिज्जा बट इट हैज चिकन इन इट. दिस हैज चिकन इन इट. इसमें तो चिकन है. देन वेटर सेड ओह आई एम सो सॉरी. आई एम सो सॉरी, लेट मी फिक्स दैट राइट अवे. अब फिक्स करने का मतलब होता है ठीक करना. फिक्स करना मतलब ठीक करना. राइट अवे मतलब बिल्कुल अभी. मैं इसको बिल्कुल अभी सर चेंज करके लाता हूँ या दूसरा लेके आता हूँ. मैं इसको अभी ठीक करता हूँ. लेट मी फिक्स इट राइट अवे. मैं इसको अभी सही करके लेके आता हूँ, यानी कि मैं आपके लिए दूसरा पिज्जा लेके आता हूँ. पोलाइट वे टू कंप्लेन. और क्या तरीके होते हैं पोलाइट वे पे? आपका ऑर्डर गड़बड़ आ गया है, ऑर्डर जो भी प्रॉब्लम हो रही, तो आप कैसे आप कंप्लेन कर सकते हो? आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक विद माई ऑर्डर. आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक विद माई ऑर्डर. मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ गड़बड़ हो गई है, मैंने तो कुछ और ऑर्डर किया था लेकिन आप कुछ और लाए. दिस इजंट व्हाट आई ऑर्डर्ड. दिस इजंट व्हाट आई ऑर्डर्ड. ये वो नहीं है जो मैंने ऑर्डर किया था. रिपीट कीजिए मेरे साथ. दिस इजंट व्हाट आई ऑर्डर्ड. ये वो नहीं है जो मैंने ऑर्डर किया था. कुड यू चेक प्लीज. क्या आप इसको चेक कर सकते हो? कुड यू चेक प्लीज. क्या आप इसको चेक कर सकते हो? पोलाइट वे. आप जो भी कंप्लेन कर रहे हो ना बहुत पोलाइटली कर रहे हो कि आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक विद माय ऑर्डर. दिस इजंट व्हाट आई ऑर्डर्ड. कुड यू चेक प्लीज. क्या आप इसको चेक कर सकते हो? एक बार ऐसे भी होता है बहुत सी बार कि जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और हम ऑर्डर दे देते हैं वेटर को, तो बहुत देर तक वो खाना लेके नहीं आता है. तो हम उसको बुलाते हैं फिर कि भाई कितनी देर लगेगी. तो वहां पे हम कैसे बोलेंगे इसको? हाउ लॉन्ग विल इट टेक. हाउ लॉन्ग विल इट टेक. तो कितनी देर लगेगी. मतलब ये भी हम इस तरह से भी बोलते हैं. नाउ कुड यू गेट द बिल प्लीज. नाउ यू आर आस्किंग फॉर द बिल.
कुड यू गेट द बिल प्लीज, क्या आप बिल लेके आ सकते हैं? नाउ वी आर डन, अब हमारा हो गया है, वी आर रेडी टू पे। सो उसने आपसे बोला श्योर सर, हियर यू गो, ये रहा सर आपका बिल, हियर यू गो। डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स? बोले यस सर। क्या आप क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हो? बोले यस सर, वी डू। वी डू मतलब हाँ सर, हम लोग करते हैं क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट। कैन वी हैव द चेक प्लीज? अच्छा, ये जो चेक वर्ड आ रहा है यहाँ पे, ये चेक का मतलब भी बिल होता है, यूएस वगैरह में बिल को चेक बोला जाता है। कैन वी हैव द बिल प्लीज मतलब क्या हमें बिल मिल सकता है? वी आर रेडी टू पे नाउ, अब हम तैयार है पे करने के लिए, मींस वी आर डन, अब हमारा हो गया है, तो वी आर रेडी टू पे नाउ। सो इफ यू लाइक द सर्विस यू कैन से, अगर आपको उनकी सर्विस अच्छी लगी है, फूड अच्छा लगा है, ठीक है ना, तो आप उनको बोल सकते हैं द सर्विस वॉज ग्रेट, सर्विस बहुत अच्छी थी, एंड हियर इज अ टिप, ये आपके लिए यहाँ पे टिप है, थैंक यू, कीप द चेंज, खुले आप रख लीजिए। Right? So, my dear friends, this is a basic conversation at the restaurant when you are ordering the food, when you are asking for the recommendations, when you are complaining about the food, and when you are paying the bill. So, you have to practice this conversation, speak the sentences, and then I'm sure you will get confidence and you will also get the fluency.